Hello my dear friends, welcome to our YouTube channel Online Physics by Renu Sharma, and today here we are going to discuss a few concepts of class 9th science, chapter 9, force and laws of motion. Okay, so here we are going to do it. Class 9 science, chapter 9, force and laws of motion. So force, as we all are aware that force is basically, it is defined as the push or pull acting on an object. Okay, so force is defined as the push or pull acting on an object. Okay, suppose I'm having this pen here, so I'm applying force on it. I'm just pushing it. Okay, now I'm pulling it. So here I'm applying force on this pen. Fine, in this manner. So push or pull acting on an object, that means हम push करते हैं या pull करते हैं, ठीक है. तो वो जो push और pull है उसको हम force बोलेंगे. And the SI unit of force is Newton. Okay, SI unit is Newton. Now let's understand the concept of inertia. Okay. And before inertia, we will do balanced force and unbalanced force, because many times question has been asked here. Balanced force, unbalanced. Balanced forces, unbalanced forces. Okay, so here we can see that balanced force means net force 0. I'm having a block here. Okay, for example, I'm having a block here and applying force from this side, and I'm saying F1, suppose it is 10 Newton, and F2 is also equal to 10 Newton. So two forces are acting on this object, okay, on this block, and both forces are equal in magnitude and directions are opposite. So net force जो आएगा हमारे पास यहाँ पर, net force जो F आएगा, that is 0 Newton. Why? Actual जो method है वो लिखने का वो क्या है, F is equal to F1 plus F2. Okay, F is equal to F1 plus F2, 10 Newton minus 10 Newton. Why? Because F2 is minus 10 as compared, if I am saying F1 is positive, taken from left to right, अगर मैं F1 को पॉजिटिव कहूँगी तो F2 जो है मेरा वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो मेरे पास नेट फोर्स जो है वो 0 न्यूटन आ गया. तो जब आपके पास में सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे 2 फोर्स ली, नॉट नेसेसरी कि आप 2 ही फोर्स लो, आप 3, 4, 5 कितने भी फोर्स ले सकते हो. अगर नेट फोर्स हमारे पास में 0 आएगी, डैट मीन्स ऑल फोर्सेस आर बैलेंस्ड. सो बैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज 0. डैट मीन्स देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. either object is in rest, it will continue in rest, or if it is in motion, it will remain in motion. So balanced force हमारे पास में इम्पैक्ट पोजिशन को या उसके मोशन को जिस स्टेट में वो है उसी में कंटिन्यू रह रहा है. अगर हम फोर्स बात करें बैलेंस फोर्सेस की. When I talk about unbalanced forces, तो unbalanced forces here net resultant exist. Okay, here F net can never be equal to 0. Here F net is 0. ओके, हेयर एफ नेट, यहाँ पे हमारे पास 0 था एफ नेट, लेकिन यहाँ पे एफ नेट इज नेवर इक्वल टू 0. ओके, डैट मीन्स इफ आई एम अप्लाइंग, सपोज हेयर अगेन आई एम हैविंग अ ब्लॉक एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स F1 10 न्यूटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, F2 आई एम अप्लाइंग 20 न्यूटन. ओके, 20 न्यूटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इट इज माई F2. सो हेयर नेट फोर्स, बिकॉज F2 इज ग्रेटर देन F1. ओके, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एफ नेट जो है हमारे पास में डैट विल बी अगेन यहाँ पे 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन हम कर देंगे, तो इट विल बी 10 न्यूटन. तो आपके पास में नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स जो है नेट यहाँ पे 0 नहीं है, फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि दीज फोर्सेज F1 एंड F2, दीज फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज बिकॉज देयर रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, इन सम टाइम इट हैज़ बिन आस्क्ड इन द एग्जाम, पूछा गया है काफ़ी बार कि आपके पास में यू आर हैविंग अ ब्लॉक, फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन इट, इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, नेम द फोर्स इन्वॉल्व. तो फोर्सेस हियर आर अनबैलेंस्ड फोर्सेज, and obviously 20 Newton is more dominating as compared to 10 Newton.
20 न्यूटन ग्रेटर है 10 न्यूटन से, तो F2 ग्रेटर है F1 से, दैट्स वाई नेट फोर्स जो 10 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट विल मूव, कहाँ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट विल मूव टूवर्ड्स, और वी कैन से ऑब्जेक्ट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके, फ्रॉम राइट, इट विल मूव फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, और कह सकते हो along F2, along डायरेक्शन ऑफ F2, और in a direction opposite to F1, हम ऐसे भी कह सकते हैं। 3 मेथड्स हमारे पास। either you will say that obviously F2 मोर है तो ऑब्जेक्ट विल मूव along F2, इसके साथ जाएगा, या फिर opposite to F1 भी कह सकते हैं, और obviously we can see here that object is moving from right to left, so it will move from right towards left. Okay, so here we have done balanced force and unbalanced forces also. Now come to inertia. अब inertia क्या होता है? Okay, let's do it. इनर्शिया क्या होता है आपके पास में? इनर्शिया बेसिकली देखा जाए तो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। ओके, अब ऐसा कह सकते हैं कि हैवी बॉडी विल हैव मोर इनर्शिया, लाइटर बॉडी विल हैव लेस इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया को हम सिंपल वाले डिफाइन करते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी or tendency, we can say, of a body or an object to continue in its state of rest or motion, okay, unless or until any external unbalanced force is applied on it. अगर सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो भाई बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि आप बॉडी पे कोई बाहर से माने कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। अगर आपकी फोर्स बैलेंस्ड है तो भी बॉडी जिसमें है उसमें रहेगी। तो मैंने इससे पहले आपको इनर्शिया से पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट बताया इसलिए, ठीक है। तो इनर्शिया क्या है हमारे पास? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अनटिल एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो बॉडी जिस स्टेट में थी उसी स्टेट में कंटिन्यू करेगी। ओके, नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ओके, टिल देन बाय।